number of charge carriers. And in extrinsic semiconductor, even at very low temperature, we have sufficient number of charge carriers, electrons in type N type. And for p-type semiconductor, holes in valence band. So see this expression. The expression we derived earlier, last lecture, are used here to discuss the temperature dependence of intrinsic and extrinsic charge carriers. So the variation of carrier concentration with temperature can be studied with the help of the equations we derived earlier. Initially, the variation of N naught and P naught, ये subscript होना चाहिए था, with T seems relatively straightforward in these relations. But the problem is complicated because it is in fact internally depends on the temperature. So if we multiply expression 5 and 9 which we derived last term for the N naught and P naught, तो ये आया था, आपने देखा था, N naught P naught is equal to Ni square, ये क्या था, Nc Nv exponent minus Eg upon Kt, where Nc and Nv are the effective density of states in conduction and valence band. Eg is the energy gap and at absolute temperature T. So at temperature T, this product is constant, you see here, है ना? But we are looking for the temperature dependence. So here you see that it's seen that Ni depends on T according to this relation. यहाँ से Ni ले लो तो ये square root हो जाएगा इसका, ये 2kT हो जाएगा. But Nc Nv itself depends on temperature. So there is a complicated temperature dependence you see here. If we replace the expression for Nc and Nv. Clear? Hello? Yes, sir. Hello? हाँ, तो क्यों Yes, sir. complicated है ये? Why it is complicated? सर क्योंकि सर एनसी और एनवी भी टेम्परेचर डिपेंड करते हैं सर. हाँ, तो Ni स्क्वायर तो ये आ रहा है, Ni निकालने हम, तो देखिए Ni ये आ रहा है, Ni इज दिस, Ni ब्रैकेट में हमने T लिख लिया क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस देख रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप तो ये हो जाएगा. लुक हियर, mn स्टार mp स्टार कांस्टेंट, उसको एक ब्रैकेट में ले लिया. तो टेम्परेचर डिपेंडेंस के दो टर्म है, एक तो ये है ना 3/2 और एक ये एक्सपोनेंट. तो Ni seems to depends on temperature due to these two factors appearing in this expression, है ना? These two temperature dependent factors are appearing in the expression for Ni, intrinsic carrier concentration at temperature T. Any confusion in this? है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, यहाँ से आई है एक्सप्रेशन, जो हमने दो एक्सप्रेशन टाइप की थी, मल्टीप्लाई करा, ये आ गया. फाइन. शुड आई मूव फॉरवर्ड? शुड आई गो टू? ओके, नाउ सी. नाउ वी इसका प्लॉट करिए, देखिए इधर से ले लीजिए LNT, तो यहाँ आप क्या देखेंगे, जो 3/2 डिक्रीज है, it will less appearing in the graph because exponential decrease is with this you see टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम 1 लिख सकते हैं एक्सपोनेंट Eg/2 T. This means by increasing temperature, although this term will decrease, but it will be in denominator, so Ni will increase. And if you plot with the 1/T to have a straight line, you will find something like this, है ना? देखिए गौर से जरा ग्राफ को समझिए इसको. एक्स एक्सिस पे ये क्या है 1000/T. ये ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 1/T का डिपेंडेंस है डोमिनेटिंग, बिकॉज ये जो T वायर है इसको ये ओवरकम कर देगा. The 3/2T dependence will be masked due to more prominent dependent on exponential factor. So we plot this
ऑन द रेसिप्रोकल टेम्परेचर स्केल। तो यहाँ जो एक्स एक्सिस पे है रेसिप्रोकल टेम्परेचर स्केल है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे स्केल को हम कैलिब्रेट कर दें, अच्छा लगेगा ग्राफ इससे। और करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यहाँ ऊपर दिखाए गए, तो यानी यहाँ एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर टी जैसे बढ़ाओगे, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, बिकॉज दिस इज 1/T। फाइन। तो ये जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड के लिए दिखाया गया है, इफ यू कैन सी। देख लीजिए इसको और पूछिए अगर कुछ नहीं समझ में आया हो इस ग्राफ में, देख लो बेटा। हाँ भाई, एनी कंफ्यूजन दिख रहा है आप लोगों को? So because this is the temperature dependence. Hello, hello, Yes, sir. hello. बताइए इसमें any confusion in this graph? सर पीछे वाली इक्वेशन समझ में नहीं आई थी सर। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, ये देखिए। क्या नहीं समझ में आया बताइए, कौन सा नहीं समझ में आया? ये 2 पाई के साथ टी जो है सर, इससे इंक्रीज वेयर टी, करेंगे तब भी तो ये एन इंक्रीज होगा सर। कैसे? नहीं नहीं होगा, लेकिन ये जो डिपेंडेंस है बहुत कम होगी, ये ओवरकम। जो मेन जो आपको दिखेगा डिपेंडेंस इसकी वजह से दिखा, हाँ इसकी वजह से भी होगी, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज तो हमेशा ज्यादा होगा ना 3/2 पावर से, ये कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर वैसे इंक्रीज तो सर दोनों टी की वजह से होगा ना सर? या हाँ हाँ, दोनों की वजह से होगा, यस। अब क्योंकि वो तो चार्ज ठीक कैरियर है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं ना, तो वो चाहे इसकी वजह से जो मेन दिखेगा वो तो आपको इस टेम्परेचर की वजह से दिखेगा ना, वो तो जा ही रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही रहे हैं वो, है ना। ओके सर। हाँ चलिए अब देखिए, हाँ ये ग्राफ है ना। Intrinsic carrier concentration for germanium, silicon and gallium arsenide as a function of inverse temperature. The room temperature values are marked for reference. इनवर्स टेम्परेचर के साथ है ना, तो ये डिक्रीज दिखा रहा है, लेकिन देखिए टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है इधर से इधर, है ना, इसलिए ऊपर दिखाया गया है ब्लू लाइन, देखिए आप जो है जहां पर 4 है एक्स एक्सिस पे, वो 250 है टेम्परेचर बेसिकली, ये 300 केल्विन है, ये 400 है, ये 500 है, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन हमने वर्टिकल ड्रॉ की है, ये क्या है, रूम टेम्परेचर वैल्यूज दिखा रहा है कैरियर कंसंट्रेशन की। तो देखिए इसमें 2 पॉइंट जो बताया ही था आपको उस दिन, 2.5 इंटू 10 पावर 13 है जर्मेनियम में, 1.5 इंटू 10 पावर 10 है सिलिकन में, ये तो कई बार बता भी चुके हैं। और गैलियम आर्सेनाइड में रूम टेम्परेचर क्या है, 2 इंटू 10 पावर 6। यस, नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस ग्राफ। हाँ भाई, सर ये जर्मेनियम में सर एरो जा रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है सर, जो एनआई जो है। लेकिन इन दोनों में जो एरो है नीचे, सिलिकॉन और जो गैलियम आर्सेनाइड, उसमें सर क्या एरो क्या शो कर रहा है? नहीं नहीं, दोनों में इंक्रीज कर रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ रही है, देखिए ना, तीनों में तो बढ़ रही है। कहाँ तुम्हें लग रहा है अपोजिट? एक्स एक्सिस पे 1/T है, 1000 से मल्टीप्लाई करके, टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है, जो लोअर एक्स वैल्यू के पॉइंट है वो ज्यादा टेम्परेचर के हैं, देखो उल्टा है ना, ये इनवर्स प्लॉट किया हमने, दोनों का लॉग लेके जो एक्सप्रेशन थी ना उसको, तो इधर 1/T आ जाएगा, इधर ये सर ये बस देख इंट्रेंसिक लो। फ्लोट किया गया है ना? हाँ हाँ, ये इंट्रिंसिक के लिए है। अच्छा सर।
हाँ भाई बताइए। चलिए अब देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट। कहाँ चला गया, एमटेक का लेक्चर खोल रहा है। तो दिस इज योर, now it is for extrinsic semiconductor. Look here what I'm saying. Now consider a semiconductor. Here we have considered silicon doped with 10 power 15 donors. ठीक है, समझिएगा जरा इसको। तो आपने देखा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप हो जिसमें हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज इंक्रीज करें तो उसमें डोनर अपना एक लेवल बनाता है वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, है ना। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो पर जो भी उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी के पास रहते हैं, डोनर्स के पास। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू डोनर एटम्स आर विद डोनर्स एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ सर के। सर नाउ इफ यू इंक्रीज टेंपरेचर, हाँ डोनर बोल। लेवल फर्मी लेवल ही को बोलते हैं क्या? नहीं भाई, फर्मी लेवल अलग चीज है। डोनर लेवल इज एनर्जी लेवल क्रिएटेड बाय इम्प्योरिटी एटम्स। डोनर फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी है, पूरा एक्सप्लेन किया था हमने डिटेल में ही उस दिन। फर्मी लेवल अलग चीज है, ठीक है। फर्मी लेवल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और डोनर लेवल तो जो आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं डोपिंग में वहां से आता है। पूरा हमने एक्सप्लेन किया था फिगर बनाकर, ठीक है, फाइन, अलग है ये। तो ये ऐसे सिलिकॉन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ग्राफ है टेम्परेचर डिपेंडेंस का कैरियर कंसंट्रेशन की, जिसमें 10 पावर 15 डोनर्स मिक्स किए गए हैं। तो जैसे ही जीरो से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डोनर एटम्स आयोनाइज होना शुरू होगा और उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे, कंडक्शन बैंड ऑफ द मटेरियल। तो ये सबसे पहले देखिए ये लाइन आयनाइजेशन जहां लिखा है ना, आयनाइजेशन रेंज यानी एक्सट्रिंसिक का जो ग्राफ है वो तीन रेंज में डिवाइड कर सकते हैं, आयनाइजेशन रेंज, एक्सट्रिंसिक रेंज एंड इंट्रिंसिक रेंज। अब समझिए आपको, जैसे आप टेम्परेचर लो से हाई कर रहे हैं तो ये देखिए जो डोनर एटम्स थे, डोनर का वो आयनाइज होने लगे क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे कहाँ, कंडक्शन बैंड में, और वो आयनाइज होने गए तो प्लस चार्ज दिखा रहा है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। अब ये आयनाइज होता रहेगा कब तक, जब सारे डोनर एटम्स कहां पहुंच जाएंगे, अराउंड 50 और 100 के पर कंडक्शन बैंड ऑफ दिस सिलिकॉन, ठीक है। अब टेम्परेचर आप बढ़ाओ तो कुछ नहीं, वो एक्सट्रिंसिक ही सेमीकंडक्टर रहेगा, और कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अब वैलेंस बैंड से भी कंडक्शन बैंड में आने रहें लगेंगे, बट द मेजर पॉपुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्शन बैंड इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम डोनर इम्प्योरिटी। तो इस काफी टेम्परेचर रेंज तक ये क्या रहेगा, एक्सट्रिंसिक की ही रहेगा, बिकॉज एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। लेकिन अगर बहुत ज्यादा और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक पॉपुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर, और जो आपका सेमीकंडक्टर वो इंट्रिंसिक बन जाएगा। तो ये तीन रेंज दिखाई गई है, समझ में आई नहीं बात। और ये जितनी इम्प्योरिटी लेवल होगा वहीं जाकर कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ 10 पावर 15 पर हुआ ही है, जो है नॉट है ना 10 पावर 15, अगर 10 पावर 17 मिलाओगे तो थोड़ा ऊपर यहाँ आके होता कांस्टेंट, ये होता फिर कांस्टेंट होता। क्लियर है ये ग्राफ। एन नोट डिक्रीज क्यों कर रहा है इसमें? टेम्परेचर ऑल दी शैलो डोपेंट्स आर आयनाइज्ड, शैलो मतलब बहुत करीब है उसके, शैलो बहुत छोटा। When the temperature is decreased sufficiently 100 Kelvin, some of the dopants are not ionized, freeze out region कहलाता है ये। आयनाइजेशन रीजन से पहले का जो रीजन है उसको फ्रीज आउट कहते हैं, जो यहाँ नहीं दिखाया गया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, उस टाइम वो इंसुलेटर ही होता है। When the temperature increase so high that the intrinsic carrier concentration approaches the active dopant concentration, सिलिकॉन में ये 450 के पर हो जाता है अराउंड, तो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक रीजन में आ जाता है, यानी है तो एक्सट्रिंसिक
और काम कैसा, एंड इट विल एक्ट लाइक ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. So this is how the temperature dependence of extrinsic material can be discussed. By dividing its dependence over three regions, there is a plateau which is called extrinsic region, and then the ionization and intrinsic region at high temperature. Hello? 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 Yes, sir. Hello? Hello? Yes, sir. हेलो. यस सर. हाँ बोलिए. क्या? हाँ बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है सब तो बहुत बढ़िया है. एनी कंफ्यूजन? समझ में आया ये एक्सट्रिंसिक का टेम्परेचर डिपेंडेंट? सर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एनआई होता है ना? हाँ हाँ. सर तो एन नॉट है ग्राफ में तो. अरे यार, इंट्रिंसिक का तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये एक्सट्रिंसिक का दिखाया गया है. एंड नॉट. इधर लिखा हुआ है सर लेफ्ट में कि हाँ ये एन नॉट एन, ये ना. हाँ सर बोलो, थर्ड कहाँ कह पॉइंट. रहे हो? थर्ड हाँ व्हेन द टेम्परेचर, हाँ इंक्रीज. तो ये हमने आपको रीजन समझाया ना. पहले तो आयनाइज होता है डोनर एटम, उसके सारे चले जाते हैं कहाँ, कंडक्शन वैल्यू. फिर वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज्यादा होती है तो एक्सट्रिंसिक रहता है वो इस टेम्परेचर रेंज तक. लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये इंट्रिंसिक बन जाएगा. क्यों बन जाएगा? द नंबर ऑफ electrons coming from valence band will be more as compared to number of electrons donated by impurity atom. तो वो इंट्रिंसिक बन जाता है 450 K पर सिलिकॉन, है ना? नहीं आई समझ में अभी बात? सर यही वाला स्टेटमेंट एक और बार हेलो. बताइए सर. हम ये कहें, देखिए आप, ये एक्सट्रिंसिक की हमने वेरिएशन दिखाया. अब आप एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसीडर करो, जैसे यहाँ हमने सिलिकॉन किया है जिसमें हमने 10 पावर 15 इम्प्योरिटीज डोनर एटम्स मिलाएं पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा? इस सेमीकंडक्टर में एक वैलेंस बैंड होगा, सारे इलेक्ट्रॉन वहीं होंगे, और डोनर लेवल होगा, एक फर्मी लेवल होगा जो अपर पार्ट में होगा कंडक्शन बैंड के पास, और उसके ऊपर होगा डोनर लेवल. ठीक है. और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? डोनर के पास. कंडक्शन बैंड एम्प्टी है अभी 0 केल्विन पर. अब आपने टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो क्योंकि डोनर एटम्स का जो लेवल है वो तो बहुत पास है डोनर लेवल ईसी के, तो वहां के इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन बैंड में जाना शुरू होंगे, तो ये आयनाइजेशन होगा इसका. तो ये आयनाइजेशन रेंज दिखाइए, ये देखो एक लाइन, यानी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ रही है एंड नॉट बढ़ रहा है. और कब तक बढ़ेगा ये? जब डोनर के सारे एटम्स 10 पावर 15 जो एटम्स थे वो कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में. अब आप टेम्परेचर बढ़ाते रहो तो ये एक्सटेंसिक ही रहेगा, क्योंकि ये तो सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुके हैं. अब थोड़े बहुत वैलेंस बैंड से भी आएंगे, लेकिन वो कम होंगे एज कंपेयर टू एनडी. ठीक है. अब ये इस रेंज तक, काफी टेम्परेचर रेंज तक एक्सटेंसिक ही रहेगा. अब जैसे बहुत, जैसे थर्ड पॉइंट जो है, जैसे ये अबव 450 के जाएगा तब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू एनडी. यानी जो डोनर से इलेक्ट्रॉन आए थे उससे ज्यादा कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर. तो ये तो इंट्रिंसिक हो गया फिर, है ना? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ज्यादा हो गए ना, तो ये एक्सट्रिंसिक कैरियर को, कंसंट्रेशन को आउटकम कर दिया, तो ये फिर इंट्रिंसिक बन गया. इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: आयनाइजेशन रेंज, एक्सट्रिंसिक रेंज एंड इंट्रिंसिक रेंज. अब बताइए क्या नहीं समझ में आया? यस. हेलो. आ गए. हेलो. ठीक है. अब ये देखिए स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी, अब ये सब होगा, लेकिन टोटल सेमीकंडक्टर तो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है. तो ऐसे सेमीकंडक्टर हम कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर कहते हैं. अब जरा आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम. अभी तक हम या तो फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते थे या थर्ड ग्रुप की, लेकिन ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर दिखाया गया है जिसमें दोनों इम्प्योरिटी ऐड की गई है. ठीक है. बोथ impurity. A compensated semiconductor is one that contains both donor and acceptor impurity atoms in the same region.
ठीक है, इसको देखिए, लेकिन एन डी इज ग्रेटर देन एन ए, इसमें दोनों इंप्योरिटी हैं, बट द कंडीशन डोनर इंप्योरिटी इज मोर देन एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ये कहना चाह रहे हैं, दे हमने लिख भी दिया है, देखिए when the concept of doping was introduced we assumed the material contained either ND donors or Na acceptors, so that extrinsic majority carrier concentration N naught is equal to ND, अगर वो फिफ्थ ग्रुप की है और थर्ड ग्रुप की है तो P नॉट इज इक्वल टू Na, जितने एक्सेप्टर एटम होते हैं उतना होता था P टाइप I नॉट P टाइप मटे। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी हम दोनों इंप्योरिटी ऐड करते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर कंटेन्स बोथ डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स इंप्योरिटी। फॉर एग्जांपल ये जो फिगर है बिलो इलस्ट्रेट सेमीकंडक्टर फॉर विच बोथ डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स आर प्रेजेंट बट एंड इज ग्रेटर देन Na, ठीक है। द प्रोडोमिनेंस ऑफ डोनर्स मेक द मटेरियल एन टाइप एंड द फर्मी लेवल इज देयरफॉर इन द अपर पार्ट ऑफ द वैलेंस बैंड, दिस एनर्जी बैंड गैप, since EF is well above the acceptor level EA, this level is essentially filled with electrons. However, with EF above EI तो middle, we cannot expect whole concentration in the valence band। समझिए इस फिगर को जरा, ये एक ऐसे सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है जिसपे दोनों ही इंप्योरिटीज हैं, डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, लेकिन एक्सेप्टर में जितनी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उतने होल्स नहीं है वैलेंस बैंड में। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाते हैं और कुछ होल्स को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो एन नॉट क्या हो जाती है आपकी एन डी माइनस एन ए, ये जो एक्सप्रेशन है ना, एन नॉट क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस एन डी माइनस एन ए हो जाएगा। हाँ भाई बताइए क्या नहीं समझ में आया इसमें? एक बार दोबारा बोल दीजिए अपने स्टेटमेंट के लिए हेलो, वाला सर। हाँ देखिए ये एक हमने जो डायग्राम है बैंड डायग्राम, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है कैसी सेमीकंडक्टर जिसमें बोथ एक्सेप्टर और डोनर इंप्योरिटीज हैं, लेकिन डोनर इंप्योरिटी ज्यादा है। तो इसमें जो ओवरऑल करेक्टर है वो क्या रहेगा, एन टाइप का रहेगा, और फर्मी लेवल एन टाइप में EI से अबव होता है, यानी अपर हाफ में होगा, ठीक है। तो ये डोनर लेवल हुआ, ये फर्मी लेवल हुआ, ये इंट्रिंसिक लेवल जिस इंट्रिंसिक से ये बना, ये तो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये एक्सेप्टर लेवल है, ठीक है। अगर ये प्योर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता तो जितने एक्सेप्टर लेवल में इलेक्ट्रॉन थे उतने ही वैलेंस बैंड में होल्स होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, होल्स कम है, देख रहे हैं ना आप। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों इंप्योरिटी हैं और एनडी ग्रेटर देन Na है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे कंडक्शन बैंड में, वो वैलेंस बैंड में आ जाते हैं, आएंगे क्योंकि हाई एनर्जी लोअर में कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन होल, तो कुछ होल्स को वो फिल कर देते हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, एनडी माइनस Na इंस्टेड ऑफ, या अगर प्योर एन टाइप होता तो एनडी होती, एन नॉट क्या होता जितनी इंप्योरिटी आइटम मिला है अपने नाम, अगर प्योर पी टाइप है तो पी नॉट क्या होता Na, लेकिन इसमें दोनों इंप्योरिटी हैं और एनडी इज ग्रेटर देन Na है, तो एन नॉट क्या हो जाएगा एनडी माइनस Na, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। और वो कंपनसेट कहां से होता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, कुछ होल्स को फिल करते हैं, तो इसलिए एन नॉट क्या हो जाता है एनडी माइनस Na, ठीक है, क्योंकि होल्स कितने बनेंगे जितने Na है, जितनी एक्सेप्टर इंप्योरिटी उतने ही तो होल्स बनेंगे। हेलो यस सर। हेलो, ठीक है, तो उससे वो मैच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट होल कंसंट्रेशन इन द वैलेंस बैंड कम्युनिकेट, मतलब मैच नहीं करेगी विद द एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। इनफैक्ट द फिलिंग ऑफ EA स्टेट ऑकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ डोनेटेड कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऊपर से नीचे आ जाते हैं वो, इसलिए द मैकेनिज्म कैन बी विजुअलाइज्ड एज फॉलो, assume an acceptor state is filled with a valence band electron when a hole resulting in the valence band, this hole is then filled by recombination with one of the conduction band electrons, extending this logic to all the acceptor atoms, we expect the resultant concentration of electrons in the conduction band to be Nd minus Na, Nd नहीं होगी, क्या होगी Nd minus Na instead of the total Nd, this process is called compensation।
By this process, it is possible to begin with a n-type semiconductor and add acceptor until n is equal to nd. अब मान लो एक्सेप्टर और डोनर इंप्यूरिटी आपने इक्वल ऐड की, तब तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि एन नॉट क्या था, एन डी माइनस एन है, तो एन नॉट क्या होगा, जीरो, सिर्फ एन आई बचेगा आपके पास इंट्रिंसिक. And no donated electrons remain in the conduction band. In such compensated material, n naught is equal to p naught is equal to ni. अब वो सिर्फ जो चार्ज कैरियर होंगे वो इंट्रिंसिक वाले होंगे. And intrinsic conduction is obtained with further acceptor doping. The semiconductor becomes p type. अब वो p type बन जाएगा, एक्सेप्टर ज्यादा कर दो और p naught की कंसंट्रेशन क्या होगी, Na minus Nd. Okay. The exact relationship among the electron hole donor and acceptor concentration can be obtained by considering the requirement for space charge neutrality, because the semiconductor as a whole will remain electrically neutral. If the material is to remain electrostatically neutral, the sum of the positive charges, holes and ionized donor atoms, must balance the sum of the negative charges, electrons and ionized acceptor atoms. So P naught plus Nd plus is equal to N naught plus Na माइनस. तो एन नॉट जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट प्लस एन डी माइनस एन ए. अब अगर एन नॉट बहुत ज्यादा है पी नॉट से, यानी डोनर इंप्यूरिटी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, तो पी नॉट को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और एन नॉट क्या हो जाएगा, एन डी माइनस एन ए. Since the intrinsic semiconductor itself is electrostatically neutral and the doping atoms we add are also neutral, the requirements of these equations must be maintained at equilibrium. The electron and hole concentrations at the Fermi level adjust such that these equations are satisfied. इस तरीके से लेवल मूव करते रहेंगे जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे. हाँ बताइए भाई. This is all from today's lecture. Any Sir, confusion in this? हाँ sir, n naught to ni plus nd minus n होना कहाँ चाहिए ना पर सर? क्या होना चाहिए, सर n naught equal to ni plus nd minus नहीं नहीं na. एन आई क्यों होगा भाई, इंट्रिंसिक थोड़ी है. इंट्रिंसिक कैरियर की तो हम बात एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं भाई. एन नॉट अगर वो नॉर्मल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें इंप्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन तो होगी 10 पावर 10 ऑर्डर की, और एक्सट्रिंसिक होगी 10 रेज़ टू पावर 15 और 10 पावर 17 के ऑर्डर की, तो बहुत ज्यादा हुई ना. एनआई तो तब रोल में आएगा जब बहुत हाई टेम्परेचर हो, जैसे अभी बताया 425, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, तब एनआई की इंपॉर्टेंस आएगी. ठीक है. सर एनडी प्लस और एन माइनस क्यों लिखा है सर? आयनाइज हो गए ना, इसलिए आयनाइज डोनर एटम्स माइनस आयनाइज एक्सेप्टर एटम्स, उतने ही तो इलेक्ट्रॉन गए होंगे ना ऊपर. एनडी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स एडेड. पर डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन मिलता है कंडक्शन बैंड को, तो इसलिए एन नॉट क्या हो जाएगा, एनडी के बराबर ही होता है. सर ये मतलब प्लस न्यूट्रलिटी. माइनस, हाँ हाँ प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि चार्ज दिखाया गया है, क्योंकि जो अंदर जो सेमीकंडक्टर में आपने मान लो आर्सेनिक ऐड किया, तो वो आर्सेनिक प्लस हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला जाता है कंडक्शन वैल्यू. नहीं समझे. समझ गया समझ इसी तरीके से एक्सेप्टर में और एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको माइनस से दिखाया है. ठीक है, बट टोटल रिमेन्स न्यूट्रल. दिस आई वांट टू से. सर स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी बताना एक बार. डोनर एक्सेप्टर और बोथ द इंप्योरिटी दोनों भी ऐड कर सकते हैं ना, वही तो यहाँ दिखाया है ना. So number of charge carrier adjust themselves according to this equation, but total charge remain zero on the semiconductor. ये स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी कहलाती है. वही ये इक्वेशन शो कर रही है. पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, होल्स प्लस एक्स डोनर एटम्स आयनाइज डोनर एटम. नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड प्लस एक्सेप्टर एटम. तो ये जो इक्वेशन है पी नॉट प्लस एन डी प्लस is equal to n naught plus na minus is basically space charge neutrality equations. ये space Okay. charge. तो ये है, ये फिगर में दिखाया गया आपको.
ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें दोनों इम्प्योरिटी ऐड की गई है, डोनर भी और एक्सेप्टर भी, बट डोनर इज ग्रेटर देन एक्सेप्टर, तो यहाँ शो किया गया है। और बताइए, और कुछ देखना है? सर ये तो वन, हमारी मर्जी है ना कि डोनर हम ज्यादा रख रहे हैं, हम एक्सेप्टर को भी तो हाँ ज्यादा रख सकते हैं ना। हाँ, तो वो यहाँ डिस्कस किया हमने, तब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ईडी के पास। यहाँ देखो, यहाँ दोनों डिस्कस किए कि हमने अब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ज्यादा कर दी तो वो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, होल कंसंट्रेशन हो जाएगी Na-ND, ये देखो, है ना, दोनों डिस्कस किया गया है। तो ये बहुत सारी डिवाइस में जरूरत पड़ती है जहां दोनों इम्प्योरिटी मिक्स करना होती है। इट इज इन योर हैंड, यू स्टार्ट विद a pure intrinsic semiconductor, add both the impurities such that ND is greater than Na, it will be n-type। फिर आप ND is equal to Na कर दो तो इंट्रिंसिक हो जाएगा, फिर Na ग्रेटर देन ND कर दो तो पी टाइप हो जाएगा। एक ही सेमीकंडक्टर से तीनों रोल ले सकते हैं आप, ठीक है, just by controlling impurities। So that is the beauty of semiconductor devices, ठीक है, okay। So I'm ending today's lecture, I will upload this on Google Classroom and website also, ठीक है। सर ये जो हाँ आप बोले, लेक्चर ये सर आप इसको पहले शेयर कर दिया करिए ताकि सर हम पढ़ लें थोड़ा नहीं सा नहीं फिर पहले, लेक्चर। नहीं 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 पहले शेयर नहीं करेंगे, पहले शेयर कर दिया तो कोई क्लास ही नहीं करेगा। आप पढ़ के आइए कहीं कहीं बुक्स वगैरह से, लेक्चर तो बाद में शेयर होगा। ठीक, ओके फाइन, बाय।